میں آپ سے صاف کہتا ہوں پہلے اپنے حالات کو ہمیں درست کرنا ہے۔ اگر یہ جو ہمارے لیے اللہ نے دائرہ اختیار رکھا ہے اور یہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا اور اس دائرہ اختیار کو ہم نے کشادہ کرنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے یہ دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ حضرت صدر محترم، معزز علماء کرام، دانشوران ملت اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کے یہ اجلاس ایک تاریخی اجلاس ہے۔ آج آپ اور ہم یہاں ایک فیصلے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آپ یاد رکھیے یہ فیصلہ صرف خارجی نہیں ہے بلکہ اس طرح ہمیں باہری طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہاں سے یہ فیصلہ لے کر اٹھنا ہے کہ جو ہمارے اندر ایک ہیجان برپا ہے، ایک طوفان برپا ہے، ہمیں وہاں اگر کہیں ہمارا غلط قدم اٹھتا ہے تو ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں گے کہ کچھ بھی ہو لیکن ہم دین کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھانے دیں گے، نہ اٹھائیں گے، اور یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں گے کہ ہمیں دین پر جینا ہے اور مرنا ہے۔ آپ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن مجید اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کتاب ہدایت کا پیغام بھلا دیا۔ آپ یاد رکھیے جس طرح اللہ کا وعدہ اس کتاب ہدایت کی حفاظت کا ہے، جو اپنے آپ کو اس کتاب سے وابستہ کرے گا، اس کے پیغام سے وابستہ کرے گا، اس کے نظام زندگی سے وابستہ کرے گا، اور جس شخصیت پر، جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی اس ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اور اپنی جان و مال کی بازی لگانے کا عزم لے کر یہاں سے جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ جس طرح کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کتاب سے اپنے آپ کو مربوط کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ میں آپ سے صرف دو باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی مفید باتیں سنی، آپ نے عزم کیا، آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائدین نے یہ پیغام دیا ہے آپ کو، آپ نے یہ ارادہ کیا ہے آپ اس کو پورا کریں گے، آپ اس کے لیے آگے بڑھیں گے، قدم بڑھائیں گے، آپ اس کے لیے قربانیاں دیں گے، اور جو بھی ہمیں اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں نشاور کرنا پڑے، اپنی عزت نشاور کرنی پڑے، اپنی جان نشاور کرنی پڑے، ہم سب کچھ نشاور کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے یہاں سے عزم نہ لیا اور ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر نہ گئے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے جینا اور مرنا ہے، اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نظام زندگی دیا، جو اخلاق دیے، جو ایمان دیا، اور حقیقت یہ ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے اعلان کیا تھا اسلام کا، اللہ کی وحدانیت کا اور صحیح راستے پر آنے کا، اس وقت کون تھا اعلان کرنے والا؟ ایک شخصیت اعلان کرنے والی، ایک آدمی ماننے والا، چار آدمی ماننے والے۔ لیکن جب یہ پیغام آگے بڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت تیار کی۔ مکہ مکرمہ کا حال آپ جانتے ہیں، وہاں کون سا علم تھا اس وقت، اور کون سی ثقافت تھی، اور کون سا تمدن تھا، اور کون سی دولت ان کے پاس تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ اگر قلم تلاش کیے جاتے تو شاید 10 قلم نہ ملتے، لیکن اسی مکے سے جو آواز اٹھی، جن قربانیوں کے ساتھ صحابہ نے وہ آواز اٹھائی اور وہ دین سارے عالم میں پھیلا، اس اخلاق اور وہ ایمان کا جو آوازہ وہاں سے بلند کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ طیبہ میں وہاں سے وہ نظام چلایا، اس کے نتیجے میں سارے عالم میں دین پھیلا۔ آپ جانتے ہیں کہ کون سی طاقت تھی جس کے نتیجے میں سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ دین پھیلا اور لوگ اس کے گرویدہ ہوئے، لوگ اس کے فریفتہ ہوئے۔ یہ سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت تھی، یہ طاقت اخلاق کی طاقت تھی۔ حضرات صحابہ کے واقعات دیکھیے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران کے ساحل پر پہنچے، دجلہ کے ساحل پر ان کو آگے جانا تھا، وہ نہیں جانتے تھے یہ تیراکی کیا فن ہے، کبھی ان کو سابقہ نہیں پڑا۔ انہوں نے عمار بن یاسر سے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو عمار نے کہا کہ اگر یہ جماعت انہی صفات پر آج بھی قائم ہے، یہ صفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھالا تھا، کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ دریا میں گھوڑے ڈال دیجئے،
सहाबा ने दरिया में घोड़े डाल दिए और जब देखा ईरानियों ने कि घोड़े दरिया पर चलते चले आ रहे हैं, उन्होंने कहा देव आमदन, ये तो जिन हैं, ये देव हैं, कौन मुकाबला इनका कर सकता है। और पूरा शहर खाली हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आखिरी पैगाम आपको ये देना चाहता हूँ, आप यहाँ से तय करके जाइए, हमें अपने ईमान पर मजबूत रहना है, हमें अपने अखलाक को आगे बढ़ाना है, अपने अखलाक को बुलंद करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के आला तरीन मेयार पर हैं। आपने क्या माफ़ी के उसूल दिए, किस तरह आपने दरगुजर फरमाया। और आप जानते हैं उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी सलूक किया। जब मक्के में कहत पड़ा, आपने रिलीफ का काम किया और 500 दीनार जमा फरमाए और मक्के मुकर्रमा अपने दुश्मन को भेजे। अबू सुफियान को आप चाहते थे तो अब्बास को भेज देते, लेकिन आपने सुफियान को भेजे जो बाद में सुफियान रजी अल्लाह अन्हु हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए से जो काम कराया और मक्का उसके बाद फतह हुआ। ये मक्के की फतह का वाकया क्या है, ये सुलह हुदैबिया उसका आगाज है। किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की और दब कर सुलह की, उस वक्त ये आयतें उतरी इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, हमने आपको फतह मुबीन अता फरमाई। ये फतह मुबीन क्या थी? मक्का मुकर्रमा ये से आने के बाद ये लड़ाइयों का जो सिलसिला चला, मौका नहीं मिल सका, लेकिन जब सुलह हुदैबिया हुई, मक्के वाले मदीने गए, मदीने वाले मक्के गए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा, सहाबा के अखलाक को देखा, उनकी माशरत को देखा, उनकी आला जिंदगी उनके सामने आई, उनके दिल पिघल गए। और आप जानते हैं तारीख का वाकया है ये कि पूरे 18-20 सालों में इतनी बड़ी तादाद में लोग ईमान में दाखिल नहीं हुए जितनी बड़ी तादाद में इन 2 सालों में लोग ईमान में दाखिल हुए। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, इससे जमीनें हिल जाती हैं, इससे आसमान टल जाते हैं, इससे दिलों की कैफियत बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। आप यहाँ ये भी तय कीजिए, हमें पक्का मुसलमान बनना है, हमें अपने अखलाक को संवारना है, हमें इंसानियत की वो मिसालें पेश करनी है जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। अगर आपने ये तय किया हमें हर मैदान में डटना है, हमें जिस तरह अपने दुश्मनों से मुकाबला करना है, हमें उनकी गलत फहमियों का इजाला भी करना है। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस तरह मीडिया ने गलत फहमियाँ फैलाई हैं, मैं उसके वाक़यात पेश कर सकता था, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में इसका मौका नहीं है। लेकिन मैं आपसे साफ कहता हूँ, अगर आपने तय कर लिया तो आप वहाँ की उनकी गलत फहमियों को दूर कीजिए, अपनी मोहब्बतों से, अपने अखलाक से और अपनी खिदमतों से आप उनके दिल जीत लीजिए। आप देखेंगे हालात किस तरह बदलते हैं, किस तरह हमें मैदान में डटना है, किस तरह हमें मुकाबला करना है, जिस तरह हमें शरीयत की हिफाजत करनी है। इस शरीयत की हिफाजत के लिए हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत करनी है। आज जिस तरह उनके ईमान का सौदा हो रहा है, पहली बात यह है हम यहाँ से तय करके जाएं, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। और उसके ईमान की हिफाजत के लिए जो हमारे सामने पैगाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जो तरीक़ा ज़िंदगी है, हमें उसको इख्तियार करना है। अभी बातें आपके सामने आई, कौन रोकता है आपको मस्जिदों में जाने से, और कौन रोकता है आपको अज़ानें देने से, और कौन आपसे ये कहता है कि आप गलत तरीके पर शादियाँ कीजिए, आप ढोल ताशे कीजिए, आप दूसरों को रुसवा कीजिए। आप बाज़ मरतबा उन बच्चियों को जिनकी शादियाँ नहीं होती और जिसके नतीजे में बाज़ मरतबा वो इब्तिदा की कगार पर पहुँच जाती हैं और अपनी शादियों में लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, हमें ये तौफीक नहीं होती कि हमें ये रकम उनके लिए दे दें जिनकी शादियाँ नहीं होती और इसके जरिए से हम उनको ईमान बचा ले। हमें डर है कल हश्र में हमारे दामन हो और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक हो। आज ये हम तय करें हमें अपनी शादियाँ सुन्नत के मुताबिक करनी है। आज़म निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, वो फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। कि हमें अपनी मुआशरत को दुरुस्त करना है, हमें पूरे इस्लाम को इख्तियार करना है, इसी तरह अपनी अखलाकी ज़िंदगी को संवारना है। आज हम बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने भाइयों पर मुकदमे किए जाते हैं और उसके नतीजे में हम जिस हालत में पहुँच गए, मैं आपसे साफ कहता हूँ पहले अपने हालात को हमें दुरुस्त करना है। अगर ये जो हमारे लिए अल्लाह ने दायरा इख्तियार रखा है और ये तंग होता चला जा रहा है, अगर हमने इसका फ़ायदा न उठाया और इस दायरा इख्तियार को हमने कुशादा करने की कोशिश नहीं की तो याद रखिए ये दायरा तंग होता चला जाएगा। और ये इमारत शरिया के बानी हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का ये बहुत ही फिक्रंगेज उनकी बात है कि ये दायरा इख्तियार है, अगर उससे हमने
हमने फ़ायदा ना उठाया तो दायरे तंग होते चले जाएंगे। आप जानते हैं दायरे किस तरह तंग हो रहे हैं। आज अपनी शादियां हम गलत तरीके पर कर रहे हैं, इसका डर है कल पाबंदियां लगा दी जाए तो तुम शरीयत के मुताबिक निकाह नहीं कर सकते। आज अपनी मस्जिदों को हमने वीरान किया, हम खतरे में पड़ गए। आज हमारी मस्जिदें मिस्मार की जाने लगी, आज वो खतरे में आ गई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मौका दिया अमल करने का, अगर हमने उससे फायदा न उठाया, आप यहाँ से पैगाम लेकर ना गए, हम ईमान को मजबूत करेंगे, हम शरीयत पर अमल करेंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, शरीयत के मुताबिक विरासत को हम तकसीम करेंगे, हम अपने बच्चों को बुराइयों से बचाएंगे, नशे से बचाएंगे, जुए से बचाएंगे। आज मुसलमान नस्ल किधर जा रही है? हमारे नौजवान मौजूद हैं, अल्लाह के नबी के दीन के सिपाही बनने का आज़म लेकर जाएं और ये तय करके जाएं। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और कैसी बड़ी सआदत है जो हमारे नौजवानों को हासिल है कि अगर अल्लाह की बंदगी के साथ ये जवानी आगे बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत पर उनको अर्श इलाही का साया देगा। आप यहाँ से तय कीजिए, अपने महलों को बदलना है, वहाँ की नशे की लानतों को ख़त्म करना है। और मैं मिसाल देकर कहना चाहता हूँ, हमारे क़याम इंसानियत में इस तरह के काम होते हैं कि हम हर नौजवान को करीब करने की कोशिश करते हैं, वो गलत कामों में लगा हुआ है, वो नशे में है, हम नशे की लत छुड़ाना चाहते हैं। बाद इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ, 1,000 नौजवानों को नशे से निकाला गया। उसका नतीजा क्या हुआ? आज हमारे बिरादान वतन हमारे सामने आकर झुकने लगे, उन्होंने इसका एतराफ़ किया। हम आपको नहीं जानते थे, हमें गलत फहमियाँ थी, हम ये समझते थे कि आप मस्जिद जाने और मदरसा जाने, आपको क्या मतलब इस मुल्क से, आपको क्या मतलब यहाँ के समाज से। हमारे मुसलमान भाइयों, ये जिम्मेदारी है, हमें इसको याद रखना चाहिए। इस समाज को देने वाला काम हमारा है। हम हमेशा कासे गदाई लिए खड़े रहते हैं, हमारा काम लेने का नहीं है, हमारा काम देने का है। इंशाअल्लाह जिस दिन हम देने की सिफत पैदा करेंगे, ईमान को, अखलाक को, अपनी जिंदगी को, जिंदगी के एक नए अंदाज को आप देखेंगे, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। फिर हमें शायद दर दर ठोकरें खानी न पड़े और कासे गदाई लेकर हमें जगह जगह जाना न पड़े। लेकिन इसके लिए आप आज़म करके जाइए अपने ईमान की हिफाजत का, ईमान को मजबूत करने का, अल्लाह पर यकीन का, और उसके साथ साथ अपने अखलाक की बुलंदी का, बेहतर से बेहतर समाज बनाने का और लोगों के सामने बेहतर नमूना पेश करने का। अगर आपने आज़म किया, आपका आना मुबारक, आपका जाना मुबारक। आप एक पैगाम लेकर जाएंगे, एक हौसला लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे अल्लाह की मदद कैसी होती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आपकी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए और ये काफ़िला रवा रहे और अल्लाह ताला को मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।